बाद आपका पुनः स्वागत है। शुरुआत करते हैं फिजी खबरों से। फिजी संसद आपको ले चलते हैं। कल वहां पर कोट ऑफ आर्म्स और फ्लैग बिल को समर्थन मिलने के बाद उसे पास किया गया। फ्लैग को लेकर संसद में खासी डिबेट भी हुई। It's part of people's human rights to freedom of speech and freedom of political thought, to allow people to have that freedom to express themselves in that way, Madam Speaker. And that's all I want to say, in that if we pass these provisions, we're restricting fundamental human rights. Burning your flag is not a fundamental right. Madam Speaker, if you may disagree with a government policy, it doesn't mean you go and burn the flag. If we have a new flag, fine, we don't dishonor it, we don't desecrate it. But why restrict people from expressing honor or appreciation for what is embodied in what may be the former flag? If that flag, Madam Speaker, behind you becomes the former flag, why restrict people, if we are going to have a new flag, why restrict people the freedom to express their love for that flag? It all refers back to the commercial paper, the trade of it. A common person having a person from the street having a flag in his the former flag in his house, in his home, doesn't offend this section. It's only is geared towards a commercial purpose. फिजी एयरवेज की कंपनी एनुअल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट को क्यों नहीं रिलीज किया गया, ये सवाल ऑपोजिशन पार्टीज पूछ रही हैं। Difficulties we have from this side of the house is that when we request the information from government ministries and statutory bodies, it is very difficult for us to get this information. And this is why we bring these questions to the House, because the people who are working in those ministries and organizations are very reluctant to provide us with this information. They are ministers responsible for ministries. As members of parliament, you can write directly to the ministers. As members of parliament, the ministers are here present in parliament. Talk to them. Ask them. They will facilitate. I've done so. I've had issues that Honorable Karavaki had raised directly with me. We've resolved that issue. What is the problem with the other members? Why can't they raise it? एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कल संसद को बताया कि उनकी मिनिस्ट्री एजुकेशन सेक्टर में भारी बदलाव कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वे और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। A knowledgeable society, Madam Speaker, can only come about through dialogue, preparedness of the people, and especially the implementers, the teachers, who need to be well versed and trained to carry out these reforms. Unlike Ghana cut, when you cut the cane, where you use our knives to cut the cane and clean them and throw them into the trucks. No, Madam Speaker, this requires a lot from all of us, especially our teachers. Extensive training and exposure are crucial if we are genuine in our efforts to improve education in this country. फिजी के ऑपोजिशन पार्टीज ने ये सवाल पूछे कि देश को पीस कीपिंग से क्या फायदा हो रहा है। एनएफपी के तोपू के अनुसार जानने की जरूरत थी कि पीस कीपिंग में फिजी कहां तक पहुंचा है। From the minister about the benefits of peacekeeping, the National Federation Party would invite the minister to please institute an independent commission to review and make a cost-benefit analysis of the benefits and the costs of peacekeeping to Fiji. That would be better than processes of self-review, which I believe is being carried out at the moment. वातुआंगा के एक वेयरहाउस में कल आग लग गई। वहां के स्थित एटलस ट्रेडिंग वेयरहाउस में कल सुबह के वक्त आग लगी थी। It was just about 6 o'clock in the morning. There was a thick smoke coming out from my background. At about 9:30, we can see a flame burst out, as we can see right here from your television. The National Fire Authority received a call at 7:45 a.m. reporting of a rubbish fire behind the factory. The initial team responded, thinking that it was a rubbish fire. When they reached the scene, they couldn't find the rubbish fire, but found that the fire was already burning in the building. He adds they had great difficulty in going into the warehouse
as they had rolled down shutters which were hard to break open. We use our heavy machines to cut the shutters and the doors, roller shutter doors, and then start fighting the fire. But by that time, because the fire had been going on inside the building, the priority was to try and prevent it from spreading. About 65 fighters worked tirelessly for hours trying to put out the fire. Fighting was quite a challenge today, and the magnitude of the fire, I think because of the winds and everything. The cause of the fire and the entire cost of the damage will be determined after investigations. अब वक्त हुआ है भारत की खबरों का। आपने न्यूजीलैंड की जेल में गैंग वॉर के बारे में तो सुना होगा, ऐसे ही कुछ तिहाड़ जेल में भी हो रहा है। 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चलती जेल वैन में हुए प्री प्लान्ड मर्डर में नीरज बवाना गैंग के गुंडों ने नीतू दाबोलिया गैंग के पारस उर्फ गोल्डी सहित उसके साथी प्रदीप की गला दबाकर हत्या कर दी। हादसा तब हुआ जब रोहिणी कोर्ट में अपराधियों की पेशी कराने के बाद शाम के 4:30 बजे जेल वैन वापस तिहाड़ जा रही थी। दिन दहाड़े चलती वैन में हुई 2 गुटों के बीच झड़प को आसपास से गुजर रहे सभी लोगों ने देखा। ये बस का अंदर का हिस्सा है और जो बस थी उसमें 9 कैदी थे, यानी एक गुट के 7 कैदी थे और दूसरे गुट के 2 कैदी थे, नीरज बवानिया गैंग और नीतू दबोदिया गैंग के। नीतू दबोदिया गैंग के 2 आरोपी जिनकी मौत हुई है, जो हत्या के मामले में बंद थे, पारस और प्रदीप, उन दोनों की हत्या हुई और टोटल 7 लोग थे। नीरज बवानिया भी इसी बस में शामिल थे। कैदियों की मारपीट देखकर जेल वैन के पीछे चल रही पुलिस एस्कॉर्ट ने लोकल पुलिस को खबर दी, लेकिन जेल वैन के अंदर 10 मिनट तक चले 2 अपराधियों के मर्डर को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वालों ने जेल वैन में घुसकर मारपीट को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जेल वैन को तुरंत मंगोलपुरी के ही भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया। वहां कैदियों को पुलिस की सुरक्षा में बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक नीतू दाबोलिया गैंग के लीडर पारस और प्रदीप की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया है। इनका अपने टारगेट्स हैं कि जिससे इनकी खुंदक है उन्हीं लोगों को ही ये टारगेट कर रहे हैं, जिससे पुरानी राइवलरी है। पहले भी ऐसा हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बट ये स्पॉन्टेनियस एक उनका रिएक्शन रहा है। कल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है। नीरज बवाना और दाबोलिया गैंग के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में बवाना गैंग को टक्कर देने वाला एकमात्र क्रिमिनल दाबोलिया गैंग का लीडर पारस उर्फ गोल्डी ही बचता है, और इसलिए दोनों गैंग्स के बीच टक्कर होने की पूरी संभावना थी। इसलिए पूरे मामले पर तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 2 गैंग के गुंडों को एक ही वैन में क्यों भेजा गया? क्या दाबोलिया गैंग का खात्मा करने की साजिश में तिहाड़ के अधिकारी भी शामिल थे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों गैंग्स के बीच पिछले 5 सालों में कई बार गैंग वॉर हुआ है। गुजरात में भारी हिंसा के बाद अहमदाबाद के 9 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस खुद दंगों में शामिल थी। देखिए ये वीडियो। इस वक्त मैं उस इलाके में खड़ा हूं जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस उन लोगों को खदेड़ने में लगी हुई है। ये उपद्रवी जो हैं लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इन उपद्रवियों को दौड़ा दिया है और भगाने की कोशिश कर रही है। माहौल काफ़ी जो है तनावपूर्ण है। यहाँ पर काफ़ी दूर तक इन लोगों को खदेड़ दिया गया है। मैं उस तरफ चल के दिखाना चाहूँगा, इस तरफ आइएगा। ये रेलिंग जो है ये तोड़ दी गई है। रेलिंग को तोड़ के यहाँ पर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेलिंग तोड़ने की वजह से जो है काफ़ी जो है इस ट्रैफिक को पूरी तरह से ट्रैफिक रुक गई है। यहाँ पर जो है पूरी तरह से माहौल तनावपूर्ण था। इसके वजह से पुलिस जो है इस रोड पर उतरी और तमाम जो उपद्रवी यहाँ पर मौजूद थे उन्हें खदेड़ दिया गया है। पुलिसकर्मी जो है लगातार सड़क पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये माहौल स्थिति कब से बनी हुई है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ जो है कोशिशें की जा रही हैं आपकी तरफ? पुलिस कोशिश कर रही है जी, बोलिए। पुलिस कोशिश कर रही है अभी हमारा काम करने दो प्लीज। सर, कितनी फोर्स डिप्लॉय है? क्योंकि लगातार पत्थरबाजी हो रही है आप लोगों पर। अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है। हाँ। पूरा पुलिस स्टेशन एरिया में, जोन में। जी। ये सर, जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं कल रात को जिन्होंने आगजनी की थी, उनमें से किसी को हिरासत में लिया गया है? मैं ये एरिया का पेट्रोलिंग में या ये मॉब कंट्रोल कर रहे हैं। हम कितने हिरासत में लिए पता नहीं है, बाद में मतलब वो पता चलेगा। पुलिसकर्मी जो है सड़क पर ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं ताकि
कम से कम जो उपद्रवी हैं उन्हें खदेड़ा जा सके। पुलिसकर्मी लगातार जो है सड़क मौजूद हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन उपद्रवियों को खदेड़ा जा सके। और इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है ये। आपको बता दें कि पटेल आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हो रहा था, कल इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी। हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद लोग उग्र हुए और हालांकि हार्दिक पटेल को 2 घंटे बाद जो है छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। इस तरफ आपको तस्वीर दिखा दूं, पुलिसकर्मी लगातार जो है उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं और यहाँ पर एक भीड़ जो है उसे काफ़ी अंदर तक खदेड़ दिया गया है। पुलिस बंदोबस्त काफ़ी जो है चुस्त दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कल देर रात जिस तरह की आगजनी हुई है उसका एक शिकार ये इस तरह मैं आपको दिखाऊं, एक गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी है, उसके ड्राइवर और खलासी को खदेड़ दिया गया और गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया गया। रेलिंग पूरी तरह से तोड़ दी गई। शहर के तमाम हिस्सों में जो है कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। अहमदाबाद में जो है 144 धारा के तहत पूरी तरह से 5 लोगों से ज़्यादा की जमावबंदी बंद कर दी गई है। एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है सूरत इलाके में और खुद इलाके के डीसीपी जो है सड़क पर मौजूद हैं। साथ ही और भी जो बड़े अधिकारी हैं वो सड़क पर इस वक्त खुद मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थिति और भी बिगड़ सकती है अगर पुलिस कंट्रोल ना करे। आपको ये भी बता दें, लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने कल लाठीचार्ज नहीं किया होता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती, और अगर इस तरह से पुलिस लगातार उन पर लाठीचार्ज करेगी और उन्हें खदेड़ते रहेगी तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस को इस तरह की कवायद करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी उसे रोकने के लिए पुलिस के पास महज एक ही इलाज था कि उन पर लाठीचार्ज करे, उन्हें कम से कम जो भीड़ है डिस्पर्स किया जाए। भीड़ जब ज़्यादा इकट्ठा होगी तभी इस तरह के उपद्रव सामने हो सकते हैं। ऐसे में भीड़ को हटाया जाएगा तो शायद इस उपद्रव को कंट्रोल किया जा सके। भारत में हिंदूज की जनसंख्या में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पिछले आंकड़ों के मुताबिक अब भारत में कुछ कम हिंदूज रह रहे हैं। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। धार्मिक आधार पर जारी जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदुओं की संख्या 0.7% घटी है और मुस्लिमों की आबादी 0.8% बढ़ी है। साल 2010-2011 में धर्म के आधार पर हुई जनगणना के नतीजों से इस बात का पता चला है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8% है, जबकि मुस्लिम आबादी 24.6% के हिसाब से बढ़ी है। ये पहला मौका है जब देश में हिंदुओं की आबादी 80% से कम हो गई है। 2011 में ही देश की कुल आबादी 121 करोड़ हो चुकी है। इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खेलकूद के समाचार।